Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I'm Dr. Nimra Siddiq from Physiology at Sahiwal Medical College. So this is the lecture for first year MBBS students. Students, we have already covered the topics, that is pulmonary ventilation and pulmonary circulation. In today's lecture, I'll try my best to cover the topic related to gas exchange, in which we will study diffusion of oxygen and carbon dioxide through respiratory membrane. As we all are facing problem due to COVID pandemic, so I thought that this is a good idea that you people all benefited at home by listening my lectures, or you can ask me questions later on if you find any difficulty regarding understanding the topic. So coming on to the lecture, uh, let's begin. First of all, we will discuss factors influencing movement of gases. Now, there are three factors which are involved. Number one is partial pressure and gas solubility. Number two, ventilation provision, coupling. Number three, membrane thickness. So, first of all, I'll give you a little concept about partial pressure. Actually, pressure is caused by multiple impacts of moving molecules against a surface. Therefore, the pressure of a gas acting on the surfaces of the respiratory passages and alveoli is proportional to the summated force of impact of all the molecules of that gas striking the surface at any given instant. So this means that pressure is directly proportional to the concentration of the gas molecules. So first factor क्या हो गया? Partial pressure, ठीक है? Second है ventilation provision coupling. Ventilation means the gas which is the alveoli. That must be equal to perfusion. ठीक है, जाहिर है जितना ब्लड फ्लो आएगा कैपिलरीज में, परफ्यूजन होगी तो ही वेंटिलेशन होने का फायदा होगा. अगर परफ्यूजन ही नहीं है, ब्लड फ्लो ही नहीं है कैपिलरीज में, तो जितनी मर्जी वेंटिलेशन या गैस आ रही है एल्वियोले में, वो एक्सचेंज नहीं हो रही, उसका कोई फायदा नहीं होगा. सो वेंटिलेशन परफ्यूजन कपलिंग प्रेजेंट होनी चाहिए. ठीक है, ये एक फैक्टर है. नंबर थर्ड फैक्टर इज मेम्ब्रेन थिकनेस. ऑप्टिमम और एफिशिएंट थिकनेस 0.5 to 1 micron. Now we will study the determinants of diffusion. This is very important regarding exam, that and also Viva question, that what are different determinants which define that how much diffusion will take place. Okay, or question can be asked this way, that what are different factors which are involved in diffusion. So there are four factors: pressure gradient, area, distance, solubility, and molecular. So as you can see in the formula, the rate of diffusion is directly proportional to pressure difference. P1 minus P2 is pressure difference multiplied by area multiplied by solubility divided by distance into molecular weight. So जितना pressure gradient या pressure difference ज़्यादा होगा between the two points, ठीक है, P1 and P2, उतना ही rate of diffusion ज़्यादा होगा. जितना area ज़्यादा होगा उतना diffusion ज़्यादा होगी. And same is with solubility, कि जितनी solubility ज़्यादा होगी उतना diffusion rate ज़्यादा होगा. Now inversely related points कौन से हैं? Distance और molecular weight. जितना distance ज़्यादा होगा उतना diffusion कम होगी. Same molecular weight के साथ, जितना molecular weight ज़्यादा होता जाएगा substance का, उतनी ही उसकी diffusion कम हो जाएगी. ठीक है ना? तो इसको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आप लोगों को ये फैक्टर्स याद रखने हैं कि किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किससे इनवर्स रिलेशनशिप है. अब डॉल्टन्स लॉ क्या होता है? डॉल्टन्स लॉ आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, एफएससी में भी. ठीक है, अगर आपको उससे याद होगा कि क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस मिक्सचर इज equal to the sum of the independent partial pressures of each gas in sea level atmosphere. नीचे आप फॉर्मूला दे सकते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब की टोटल कितना है? 760 है. ठीक है, इसको टोटल प्रेशर कह देते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस मिक्सचर. डॉल्टन लॉ क्या कहता है कि इंडिपेंडेंट पार्शियल प्रेशर जो है गैस के, उनको सम अप करें तो टोटल प्रेशर आ जाता है गैस मिक्सचर का. एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस.
ऑक्सीजन की देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अदर गैसेस एंड टोटल। तो इसमें इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला पॉइंट कि नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, 78% है एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन है उसके बाद 21% या 20.9%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। अब इस परसेंटेज के लिहाज से इसका प्रेशर आगे डिफाइंड है, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह परसेंटेज अगर गिवन हो तो आप प्रेशर कैसे चेक कर सकते हैं, आप प्रेशर किस तरह निकाल सकते हैं कि ऑक्सीजन का कितना है, नाइट्रोजन का कितना है, ठीक है। आपको परसेंटेज मालूम हो तो आप प्रेशर निकाल सकते हैं। This slide shows how you can calculate the partial pressure if percentage of the gas is given, because you know the pressure in atmosphere, which is 760. So here you can see example is given for oxygen. Oxygen is 21%. So if you multiply 0.21 with 760, which is atmospheric pressure, we get 159 millimeter of mercury, which is partial pressure of oxygen. So you can see the note point that it is written atmospheric partial pressure of oxygen decreases when you go upwards, for example in mountain, and it increases as one dives into the ocean. So this is the method how you can calculate the partial pressure of different gases. For example, you can also calculate about nitrogen. You will multiply 0.78 with 760, because the percentage of nitrogen is 78% in environment. So moving on to the next slide now. Now we are going to discuss about Henry's law. This is also important, and its formula is also important, because by that formula you get to know that which thing is directly proportional, which is inversely proportional. So Henry's law is also about partial pressure and about what is the concentration of gas and solubility coefficient. So when a mixture of gases is in contact with a liquid, each gas will dissolve in the liquid in proportion to its partial pressure. The amount of gas that will dissolve in a liquid also depend upon its solubility. Various gases in air have different solubilities. Carbon dioxide is the most soluble. Oxygen is 1 by 20th as soluble as carbon dioxide. And nitrogen is practically insoluble in plasma. अभी जितनी भी गैसेस हैं इन सब की solubility coefficient की values different है, राइट। ऑक्सीजन की जिस तरह 0.024 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.57 है, इसी तरह नाइट्रोजन की 0.012 है। ये मेन गैसेस हैं जिनकी आपको याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि आप याद रखेंगे तो ही आप बता सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट अगर इसकी इतनी है तो इसकी फिर पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ गैस जो डिसॉल्व हो रही है उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। हेनरी लॉ बेसिकली ये है कि वो बताता है कि पार्शियल प्रेशर गैस का कितना है अगर उसका सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट इतना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका 0.57 सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट है, तो हम ये देखेंगे कि कंपैरिजन में ऑक्सीजन का अगर 0.024 है सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट, तो उसका रिलेशनशिप पार्शियल प्रेशर से किस तरह बन रहा है, इनवर्स है, डायरेक्ट है, कितने टाइम सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, कितने टाइम कम है, ठीक है। पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, फिर आपको आसानी हो जाएगी कि हेनरी लॉ क्या है, उसको किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है, और क्या चीज़ें हैं दोनों फैक्टर्स उसमें जो हमने याद रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज़ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या चीज़, ठीक है। अच्छा जी, ये है फॉर्मूला हेनरीज लॉ का। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट। अच्छा, अब एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है या ऑक्सीजन का ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ एमसीक्यू में आ जाती है, आपके एससीक्यू में आ जाती है। और अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड, सो हैव इट इन योर माइंड दैट आंसर इज हेनरीज लॉ। आपने हेनरीज लॉ के थ्रू बताना है कि क्यों पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट ज़्यादा है ऑक्सीजन से, 0.57 है, 20 टाइम्स इसकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है इस गैस की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए इसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, ठीक है। इस फॉर्मूले के थ्रू आप देख सकते हो कि जिसकी सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट ज़्यादा होगी उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट मैंने बताया कि ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, कितनी है, 0.57 है, इसलिए उसका पार्शियल प्रेशर कंपेयर टू ऑक्सीजन क्या है,
कम है, ठीक है। अब क्यों इस तरह से है कि एक चीज़ सॉल्युबल ज़्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर कम आ रहा है? इसकी अंडरस्टैंडिंग आप ऐसे लें कि देखें, when molecules are attracted, ठीक है, far more of them can be dissolved without binding up excess pressure within the solution, ठीक है, that और conversely अगर आप देखें, in the case of molecules that are repelled, high partial pressure will develop with fewer dissolved molecules, सही है। इसी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है हेनरीज लॉ एक फॉर्मूले के फॉर्म में, ठीक है, कि जितनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, ठीक है, उतने मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा जल्दी रिजॉल्व हो रहे हैं और उतना प्रेशर ही बिल्डअप नहीं कर पा रहे, तो दैट मीन्स कि उसका प्रेशर कम होगा। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका बुक में गाइटन में आपके आगे फॉर्मूला और उसके साथ जो गैसेस के डिफरेंट सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो दी हुई है, वो आप उसमें से ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की और नाइट्रोजन की याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इस स्लाइड में जो मैं आपको बता रही थी कि वैल्यूज़ हैं, जिस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड की 0.57 है, नाइट्रोजन की 0.012 है, ठीक है, ये आप वैल्यूज़ इनमें से देख सकते हैं और इनके रिलेटिवली आगे लिख सकते हैं खुद से पॉइंट्स बना के कि इसका पार्शियल प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा, इसका कम है या ज़्यादा है, ठीक है। इसमें अगर आप इस फॉर्म में देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू 0.57 है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की, इसलिए इन सब में सबसे कम पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह वाइस वर्सा देख सकते हैं कि किसका ज़्यादा है, कि किसका कम है, ठीक है। सो पर है कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल्स टू 760, इसका आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ रेट ऑफ नेट डिफ्यूजन इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। ऑक्सीजन में है कि if partial pressure of gas in alveoli is greater than blood then gas moves into blood, ठीक है। ये क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि हाई एरिया से लो एरिया की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो ऑक्सीजन की क्या डायरेक्शन हुई कि एल्वियोलाई में इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड में कम है, तो ऑब्वियसली फिर ब्लड में भी ऑक्सीजन जाने के लिए एल्वियोलाई से गैस मूव करेगी टुवर्ड्स ब्लड, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी ऑक्सीजन की। और ये क्यों हो रही है नेट डिफ्यूजन? क्योंकि पार्शियल प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। हमने फैक्टर पढ़ा था ना कि डिफ्यूजन के लिए पार्शियल प्रेशर का रोल है कि डिफरेंस कितना हो टू एंड्स में। तो यहाँ पे एल्वियोलाई में ज़्यादा प्रेशर है, ब्लड में कम है, इसलिए ऑब्वियसली मूव कहाँ करेगी? एल्वियोलाई से ब्लड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड के देखते हैं, वो वाइस वर्सा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि वो ब्लड में उसकी ज़्यादा है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई के कंपैरिजन में, तो इसलिए क्या होगा कि कहाँ से गैस मूव करेगी? एल्वियोलाई में मूव करेगी फ्रॉम ब्लड। If partial pressure of gas in blood is greater than alveoli, then gas moves into alveoli. ये है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का, ठीक है। आप लोग नोट कर लें कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है वेपर प्रेशर की, कि द पार्शियल प्रेशर दैट द वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट टू एस्केप थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 होता है, ठीक है। इस बॉडी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना है? 47 होगा वाटर का, ठीक है, ये आपको मेमोराइज करना है। इसी तरह बाकी भी आप नोट कर लें, अभी मेरे जहन से ना निकल जाए। जीरो जीरो डिग्री पे 5 मिलीमीटर होगा, 37 डिग्री पे 47 होगा, 100 डिग्री पे 760 होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। आपकी बुक्स में इस वक्त नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का लिखा होगा, नॉर्मल बॉडी का, ठीक है, 37 पे 47 मिलीमीटर मर्करी होता है, लेकिन बाकी भी आपने याद रखने की 0 डिग्री पे क्या है, 100 डिग्री पे क्या है, ठीक है। जब बॉडी टेम्परेचर 0 डिग्री होगा तो 5 मिलीमीटर है प्रेशर, 37 डिग्री होगा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसमें 47 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा, और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 760 मिलीमीटर मर्करी। अभी क्या है कि when dry air is breathed into the respiratory passages, water immediately evaporates from the surfaces of passages and humidifies the air. At normal body temperature 37 degrees, this surface pressure is 47, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, कि बॉडी टेम्परेचर जो है उस वो वाली वैल्यू याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जो आपका करंट बॉडी टेम्परेचर होता है 37। अब वेपर प्रेशर का फैक्टर क्या है कि किस चीज़ पे ये डिपेंड कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिपेंड करेगा आपका वाटर का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। अब टेम्परेचर को कौन सी चीज़ आइडेंटिफाई करती है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी काइनेटिक
एक्टिविटी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी उतना वेपर प्रेशर हाई होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर वाटर का किस पे डिपेंड कर रहा है? सोलली टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। अब हम देखते हैं डिफ्यूजन कोएफिशिएंट क्या होता है। अभी पिछली स्लाइड्स में आपने पढ़ा है सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट के बारे में, मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है। ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है। सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट का हमने वो पढ़ा था गैसेस का कि कितनी वैल्यूज है और हेनरी लॉ में उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज समथिंग एल्स। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के डिटर्मिनेंट्स भी डिफरेंट हैं। ठीक है, आपको पीछे एक स्लाइड में फॉर्मूला मैंने बताया था डिफ्यूजन का कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है वो एरिया, सॉल्युबिलिटी और प्रेशर डिफरेंस से, और इन्वर्सली रिलेशन है उसका डिस्टेंस और मॉलिक्यूलर वेट से। उस फॉर्मूले में आखिरी जो लास्ट टू चीज़ें हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स में, ऊपर सॉल्युबिलिटी है और नीचे मॉलिक्यूलर वेट है, इसको ओवरऑल वो नेम देता है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट का। ठीक है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इसके प्रोपोर्शनल होता है। Relative rates at which different gases at the same partial pressure levels will diffuse are proportional to their diffusion coefficients। ठीक है, ये गाइडन में लिखा हुआ है, इसको आप वहां से भी देख सकते हैं। और इस फॉर्मूले के टू फैक्टर्स बने इस तरह। ठीक है, नंबर वन सॉल्युबिलिटी, नंबर टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, आगे इसकी आपको वैल्यूज भी याद रखनी है। ठीक है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की लेट से अगर 1 है ऑक्सीजन की तो कार्बन डाइऑक्साइड की 20.3 है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी उसकी कितनी है, 20 टाइम्स हायर थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने डिफरेंस निकालना है, ऑक्सीजन का कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हीलियम का, इन सब की वैल्यूज गिवन है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की। Now we will discuss about composition of alveolar gas। इससे पहले हमने एटमॉस्फेरिक का भी बातें की है। ठीक है, एल्वियोलर गैस की कंपोजिशन अब क्या है? ठीक है, एटमॉस्फेयर में मोस्टली क्या है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आपको बताया था कि नाइट्रोजन कितनी है, 70s में है, और ऑक्सीजन 20s में है। तो मेजरली एटमॉस्फेयर में ये दो गैसेस हैं, जबकि एल्वियोलाई में हमने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं। अब क्यों है ये डिफरेंस? ठीक है, अब फर्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा है, एटमॉस्फेयर इज मोस्टली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन व्हाइल एल्वियोलाई कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। दीज डिफरेंसेस रिजल्ट फ्रॉम गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। अब लंग्स में क्या हो रहा है कि गैस एक्सचेंज होने की वजह से ऑक्सीजन डिफ्यूज कर रही है एल्वियोलाई से, क्योंकि एल्वियोलाई में उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करिए इनटू द एल्वियोलाई फ्रॉम ब्लड। तो ऑब्वियसली एल्वियोलर गैस की फिर कंपोजिशन क्या हो जाएगी, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होएगी वहां पे। और क्यों ये डिफरेंस हो रहा है, उसकी नंबर वन रीजन गैस एक्सचेंज हुई है। ठीक है, नंबर टू रीजन क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन है ऑफ एयर बाय कंडक्टिंग पैसेजेस। ठीक है, यहाँ से वाटर का एरिया डिफाइन हो गया। थर्ड क्या है कि मिक्सिंग ऑफ एल्वियोलर गैस दैट अकर्स विद ईच ब्रेथ। ठीक है, आगे हम मिक्सिंग की बात अब ये है स्टार्ट हुई है, तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी किस तरह से ब्रीदिंग हमारे सिस्टम को, एल्वियोलर सिस्टम को स्टेबल भी रखती है, कितने ब्रेथ्स में एल्वियोलर एयर एक्सपायर्ड होती है, तो हर ब्रेथ की क्या इंपॉर्टेंस है कि वो किस तरह से पूरे सिस्टम को स्टेबल रखती है। ठीक है, स्लो रिन्यूएशन ऑफ बेसिकली एल्वियोलर गैस का मैं बताना चाह रही हूँ कि किस तरह रीन्यू होती रहती है एयर एल्वियोलाई में, ताकि सिस्टम की पीएच भी और उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। अच्छा जी, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इंस्पायर्ड एयर और एल्वियोलर एयर का की वैल्यूज बताएंगे डिफरेंट गैसेस के लिहाज से। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन में देख सकते हैं कि इंस्पायर्ड एयर का वाटर प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर है, वो 159 है। ठीक है, और ये किस तरह कैलकुलेट किया था ये भी आपको याद होना चाहिए। क्या था फॉर्मूला ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए? हमने मल्टीप्लाई किया था परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को विद 760। ठीक है, और क्या आया था आंसर, 159। तो ये इंस्पायर्ड एयर का प्रेशर है। अब एल्वियोलर एयर में जाके इसका पार्शियल प्रेशर ड्रॉप हुआ है। क्यों ड्रॉप हुआ है, इसकी भी रीजन मैंने आपको बताई कि एल्वियोलाई से डिफ्यूज होकर ब्लड में चला जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है। तो इसी तरह आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू एल्वियोलर एयर में काफी ज्यादा है, 40 के करीब है। ठीक है, इंस्पायर्ड एयर में कितनी है, 0.000.3। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो एल्वियोलर एयर में क्यों गैस कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी? पिछली रीजन मैंने आपको क्या बताई पिछली स्लाइड में कि ब्लड से डिफ्यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आएंगे ताकि वहां से वो एक्सपायर हो सके। ठीक है,
तो ये कंपोजिशन की आपको जो वैल्यूज़ हैं अनफॉर्चुनेटली थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह प्रेशर डिफरेंस बाहर का कितना है, अंदर का कितना है, ठीक है, एल्वियोलाई का कितना है, एटमॉस्फेयर का कितना है, वाटर प्रेशर, वाटर का ये वेपर प्रेशर का क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। एक टेबल बना हुआ है गाइडर में जिसमें इंस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर, ठीक है, और ह्यूमिडिफाइड एयर और एल्वियोलर एयर, इन चारों एयर्स का अलग अलग गैसेस का कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। ये मोस्टली पूछे जाने वाले सवाल होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का खास तौर पर कि इसका प्रेशर कितना एल्वियोला में है, कितना एटमॉस्फेयर में है, कितना ह्यूमिडिटी के बाद हो गया है, कितना एक्सपायरेशन के बाद हो गया है, ठीक है। वो टेबल में सारा कुछ गिवन है। Okay. ये एल्वियोलाई की डायग्राम है और आप नीचे रेड और ब्लू में देख सकते हो कि रेड कौन सी साइड है और ऑक्सीजनेटेड है और ब्लू डीऑक्सीजनेटेड साइड है, जिसमें आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100% देखते हो रेड साइड पे और ब्लू में 40 है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 है एज कम्पेयर टू 40 इन ऑक्सीजनेटेड साइड। Now we will study the rate at which alveolar air is renewed by atmospheric air। मैंने आपको बताया कि किस तरह से कॉन्टिन्यूसली रिन्यू हो एल्वियोलाई में एयर के, सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, पीएच डिस्टर्ब ना हो, बैलेंस रहे, ठीक है। तो क्या है कि ओनली 350 ml ऑफ न्यू एयर इज ब्रॉट इनटू द एल्वियोलाई विद ईच नॉर्मल इंस्पायरेशन, यानी कि ईच का मतलब कि हर एक ब्रेथ में कितना एयर आ रही है एल्वियोलाई में, 350 ml, एंड दिस सेम अमाउंट ऑफ, ठीक है। सॉरी मैं अभी इंटरप्ट कर रही हूँ, आपको वैसे ही याद होना चाहिए कि टाइडल वॉल्यूम कितना था। मैंने अपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो आपको कवर करा चुकी हूँ अब तक, जितने लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें मैंने काफ़ी एम्फसाइज किया था कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ठीक है, टोटल कैपेसिटी क्या होती है। उन सब में आपको 350 ml जो है वैल्यू कहाँ से आई ये भी आपको खुद पता होना चाहिए, ठीक है। किस तरह के 500 ml आपको पता है टाइडल वॉल्यूम है कितना, ठीक है, और उसमें से कुछ डेड स्पेस भी होती है, डेड स्पेस निकल गई कितनी 150, तो पीछे कितना बच गया 350, ठीक है। तो 350 वैल्यू यहाँ से आया। 350 ml of new air is brought into the alveoli with each normal inspiration, बाकी ऊपर कितनी रहेगी डेड स्पेस में, डेड स्पेस एयर रहेगी, and this same amount of cold alveolar air is expired so that multiple breaths are required to exchange most of the alveolar air। अब इस मल्टीपल ब्रेथ्स के एक्सपायर होने का हमें क्या फायदा हुआ कि स्लोली रिन्यू हो रही है एल्वियोलाई से ऑक्सीजन, स्लोली स्लोली, ताकि सिस्टम मेंटेन रहे, सिस्टम में कोई डिफेक्ट ना आए, उसमें कोई मसला ना हो, ठीक है, स्टेबिलिटी रहती है। अब बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ एल्वियोलर एयर की, ठीक है, कि इस डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रेथ से पहले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सेकंड ब्रेथ में थोड़े कम हो गए, थर्ड में कम हो गए, फोर्थ में, और लास्ट 16th ब्रेथ पे आके काफ़ी कम हो गए, ठीक। तो मल्टीपल ब्रेथ्स रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज एल्वियोलर एयर, 350 ml of air per breath, FRC 2300 ml, and each breath replaces a seventh of FRC। Now what is FRC? If you remember, I have taught this already and has emphasized that FRC, if you don't remember its value, it's okay. You must know its definition कि FRC क्या है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी क्या है, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, ठीक है। और एग्जामिनर्स ये बहुत पूछते हैं और ग्राफ्स की फॉर्म में बहुत पूछते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करके बताएं कि FRC क्या है, कितनी ग्राफिक फॉर्म में, ठीक है। सो आपको अगर याद हो FRC क्या था कि हर नॉर्मल ब्रेथ की एक्सपायरेशन के बाद जो लेफ्ट ओवर वॉल्यूम हमारे लंग्स में है दैट इज FRC। FRC का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो था रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एम आई राइट, ठीक है, FRC प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था 1200 ml के अराउंड था और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 के अराउंड है, तो FRC इन दोनों को ऐड कर दो तो 2300 ml। और बाय डेफिनेशन इसमें ये है था कि अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल पे मैं एम्फसाइज कर रही हूँ, नॉर्मल, ठीक है। अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो जो लेफ्ट ओवर वॉल्यूम रह जाएगा लंग्स में वो क्या होगा, वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ हम एक्सपायरेटरी
कैपेसिटी को भी ले लें, एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम को भी ले लें, तो कंबाइन होके FRC कहलाता है। ठीक है, FRC की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सिनेरियो में भी आ सकता है आपको कि इतना ये वॉल्यूम है, आपने FRC कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। Now the question, the slow replacement of alveolar air is of particular importance. Why? ठीक है, इसका मैं पिछली स्लाइड्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको नंबर ऑफ टाइम्स, दैट टू प्रिवेंट सर्टेन चेंजेस इन गैस कंसंट्रेशन इन द ब्लड। सो क्या फ़ायदा होगा उसका कि ये रेस्पिरेटरी कंट्रोल मैकेनिज्म को काफ़ी हद तक स्टेबल कर देगा। ठीक है, जब आप सडन चेंजेस बॉडी में किसी भी सडन चेंजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ओवरऑल कंट्रोल और ओवरऑल स्टेबिलिटी बॉडी की बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारी बॉडी इस तरह से डिज़ाइन हुई हुई है कि उसमें हर चीज़ में स्टेबिलिटी है, अगर आप देखें। ठीक है, तो एल्वियोलर एयर की रिप्लेसमेंट इज वन ऑफ दैम। सेकेंड एडवांटेज क्या होगा इसका कि इट हेल्प्स प्रिवेंट एक्सेसिव इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन टिश्यू ऑक्सीजनेशन, टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एंड टिश्यू पीएच व्हेन रेस्पिरेशन इज टेम्परेरी इंटरप्टेड। तो क्या फायदे हो गए इनके, अगर हम देखें तो चार हो गए डिफरेंट। ठीक है, कि एक तो सिस्टम स्टेबिलिटी हो रही है, सडन चेंजेस प्रिवेंट हो रही हैं। ठीक है, एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन टिश्यू ऑक्सीजनेशन से प्रिवेंट कर रहा है ये, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की सडन चेंजेस को प्रिवेंट कर रहा है, पीएच लेवल पे ये प्रिवेंट कर रहा है सडन चेंजेस को। ठीक है, ताकि ओवरऑल सिस्टम स्टेबल रहे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट एसे क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वाईवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट एसे क्वेश्चन आए तो आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं कि डिफरेंट ब्रेथ्स में एंड तक जाते जाते आहिस्ता 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 मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। ठीक है, एब्रप्टली नहीं कम हो रहे हैं हर ब्रेथ में। Okay, now your table showing the partial pressure of respiratory gases as they enter and leave the lungs at sea level. ठीक है, ये वो टेबल है जिसकी मैं बात कर रही थी कि बुक में भी बना हुआ है, जिसमें कंपैरिजन है एटमॉस्फेरिक एयर का, ह्यूमिडिफाइड एयर का, एल्वियोलर एयर और एक्सपायर्ड एयर का, डिफरेंट गैसेस का। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, इन सब का दिया हुआ है। ठीक है, कंपैरिजन तो आप इसमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं इस टेबल को देखूँ तो आई वुड लाइक कि मैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़रूर थोड़ा मेमोराइज़ कर लूँ कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अगर 159 है, तो ह्यूमिडिफाई होके उसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, 149 पे आ गया। एल्वियोलाई में जाते जाते थोड़ा और कम हो गया। ठीक है, तो रिलेटिवली याद रख लें, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली वही वैल्यू याद रखें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पे आके फॉल हो रहा है या इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एल्वियोलाई में आके 104 हो गया, उसकी रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि डिफ्यूजन हो रही है एल्वियोलाई की ब्लड के अंदर। ठीक है, और एक्सपायर्ड एयर में 120 है। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की देखो तो फॉल नहीं करेगी, वो लेवल डाउन पे जाते जाते इंक्रीज कर देगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर से हमने कम उठाई, 0.3 थी। ठीक है, परसेंटेज कितनी थी इसकी, 0.003 थी। ह्यूमिडिफाई होके 0.3 है। ठीक है, सेम रही है, कोई ह्यूमिडिफिकेशन पे इसका इफेक्ट नहीं हुआ। एल्वियोलाई में जाके 40 होगी, क्यों, क्योंकि ब्लड से डिफ्यूज होके कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ गई, क्योंकि पार्शियल प्रेशर डिफरेंस हाई था दोनों के दरमियान। ठीक है, ब्लड में ज़्यादा था, एल्वियोलाई में कम था, तो डिफरेंस की वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से मूवमेंट कहाँ हुई गैस की, ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर होगी। ठीक है, तो इसलिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कंपैरिजन में एल्वियोलर एयर की कंपोजिशन देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो जाएगी, एक्सपायर्ड एयर में 27। ठीक है, इसी तरह वाटर वेपर की देख लें तो वो थ्रू आउट आफ्टर ह्यूमिडिफिकेशन सेम रहेगी 47। ठीक है, ये इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी जब आप थोड़ा सा रिलेटिवली देखोगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है हर लेवल पे। तो वाटर का क्या डिफरेंस आ रहा है कि उसने ह्यूमिडिफिकेशन के बाद थ्रू आउट 47 रहना है, बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 है ना, कांस्टेंट हो जाता है बॉडी टेम्परेचर, एक वक्त में तो एक ही रहता है। उस वक्त तक क्या है कि वाटर प्रेशर 47 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रहेगा, और एटमॉस्फेयर से कितना लिया 3.7 था, और टोटल करो इनका तो सम क्या है कि सब बैलेंस्ड है, 760 जो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुताबिक होता है। ठीक है, ये टेबल आपका बुक में भी बना हुआ है, उसमें से आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स एक्सपायर्ड एयर। ठीक है, कि एक्सपायर्ड एयर किस चीज़ का कम्बिनेशन है। एक्सपायर्ड एयर ऑब्वियसली कि आपने जो एयर लेकर गए हैं अंदर, उसमें शुरू में डेड स्पेस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ठीक है, फिर एल्वियोलर एयर है, इन सब ने जब बाहर निकलना है तो ये क्या है, यही एक्सपायर्ड एयर है। ठीक है, तो किसका कम्बिनेशन हुआ कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी डेड स्पेस में एक्यूमुलेटेड हुई हुई है एयर, वो
डेड स्पेस एयर और नीचे एल्वियोला है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक्सपायर्ड एयर कहलाता है, ठीक। So dead space is, as you all know, is first portion which consists of humidified air. Second portion is mixture of both. ठीक है, ये इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, राइट पे जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे ml ऑफ एयर है, एक्सपायर्ड जितने 100 200 300, ठीक है, वाई एक्सिस पे प्रेशर्स हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के। तो जो फर्स्ट आप ग्राफ में फर्स्ट देख सकते हैं पार्ट, दैट इज डेड स्पेस एयर, ठीक है। देन इज द कम्बिनेशन, सेकंड आगे की तरफ आए तो एल्व्यूलर एयर और डेड स्पेयर, इन दोनों का कम्बिनेशन है। थर्डली देखते हैं तो सिर्फ एल्व्यूलर एयर ही है, ठीक है, क्योंकि ये सारी दोनों निकल चुकी हैं, तो फिर जो रहेगी वो एल्व्यूलर है, दैट इज एक्सपायर्ड एट द एंड ऑफ एक्सहेलेशन। So it is determined by the amount of expired air, that is dead space air, and the amount that is alveolar air. अच्छा, now the topic is respiratory unit. अब तक हमने कवर कर लिया एल्व्यूलर वेंटिलेशन को, ठीक है, और गैस एक्सचेंज के प्रिंसिपल्स को, ठीक है, डिफ्यूजन के पॉइंट्स को, फॉर्मूलेस देख लिए, हेनरी लॉ देख लिए, डाल्टन्स लॉ देख लिया, ठीक है। तो मेजरली इस चैप्टर का हमने काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है। अब रेस्पिरेटरी यूनिट की तरफ आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का भी। रेस्पिरेटरी यूनिट में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है कि ये इस यूनिट की डेफिनेशन पूछी जाती है कि बेसिकली ये है क्या चीज़ और इसकी कंपोजिशन क्या है, कि इसमें कौन सी मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व हैं, सीक्वेंस वाइज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें सीक्वेंस याद रखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज एमसीक्यू के हवाले से पूछा जा सकता है कि आप इसमें से चूज़ करें जो बेस्ट सीक्वेंस डिस्क्राइब्ड है, ठीक है, कि पहले कौन सी लेयर है, देन कौन सी है, देन कौन सी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू एंड यू हैव टू मेमोराइज द सीक्वेंस वाइज। सो व्हाट इज रेस्पिरेटरी यूनिट? बेसिकली रेस्पिरेटरी यूनिट, इससे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि कंडक्टिंग जोन क्या है और रेस्पिरेटरी जोन क्या है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम nostrils till the terminal bronchioles, it is all the conducting unit, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जहाँ से शुरू होती है वो पार्ट से ऑनवर्ड एल्वियोला तक रेस्पिरेटरी यूनिट कहलाता है, ठीक है, या रेस्पिरेटरी लॉब्यूल कह देते हैं इसको। राइट साइड पे अगर आप डायग्राम देखो तो इसमें ये पूरा रेस्पिरेटरी यूनिट दिखाया हुआ है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। ये इसलिए डायग्राम में शो है कि इसके बाद से जो सारा है वो कॉन्टिन्यूटी में पता चले कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद की जो चीज़ है नीचे वाली वो सारी क्या है, रेस्पिरेटरी लॉब्यूल कहलाती है। तो उसमें आप देखिए क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वियोलर डक्ट्स हैं, एट्रिया है और एल्वियोला है, एल्वियोलर सैक्स हैं, ये सारा मिलके क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी यूनिट। फिर पॉइंट है कि 300 मिलियन एल्वियोला हैं इन द टोटल लंग्स, ठीक है, ये वैल्यू आप याद रख लें। सेकंड है कि एवरेज डायमीटर कितना है रेस्पिरेटरी यूनिट का, 0.2 है, ठीक है। एल्वियोलर वॉल्स एक्सट्रीमली थिन है एंड बिटवीन द एल्वियोला इज एन ऑलमोस्ट सॉलिड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये भी आपको जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तो डायग्राम शो की थी कि एक रिच नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, और क्यों होता है उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा रिक्वायर्ड है ताकि परफ्यूजन अच्छी हो, ताकि वेंटिलेशन अच्छी हो, गैस एक्सचेंज प्रॉपर हो, ठीक है। तो इससे यहाँ पे रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मिलेगा। देन है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना है कि 70 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये बताया, और इस कितने ऑलमोस्ट रफ आइडिया के लिए बता रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू फ्लोर एरिया ऑफ 25 बाय 30 फुट रूम। अच्छा, ये एक डायग्राम है जिसमें क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया हुआ है एल्वियोलर वॉल्स का, ठीक है, ताकि आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि वेन, आर्टरी, लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है, ये सारे एल्वियोलस जो हैं ये इन सब चीज़ों को सराउंड कर रहे होते हैं, ठीक है। वेन देख सकते हो, आर्टरी है, येलो में लिम्फेटिक वेसल है, और इसके सेल्स के दरमियान आप स्पेस देख सकते हैं, दैट इज पेरीवेस्कुलर इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। और जो बड़े आपको स्पेसेस नजर आ रही हैं, दीज आर एल्वियोलाई लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल्स। सो नीचे एक वैल्यू लिखी हुई है, टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज ऑफ द लंग इज 60 to 140 ml, और डायमीटर क्या है कैपिलरीज का, 5 माइक्रोमीटर्स। अच्छा जी, अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एल्वियोलर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी यूनिट, ठीक है, इसकी बेसिकली सीक्वेंस वाइज मैं आपको बता रही थी कि मेम्ब्रेन्स आपको याद करना है, ये वो है, ठीक है, कि स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड टू द अदर एंड कौन कौन सी इसमें लेयर्स मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व हैं,
ठीक है। ये डायग्राम आपको बनानी भी आनी चाहिए कि अगर आपसे रेस्पिरेटरी यूनिट का या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इस पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी कंपोजिशन क्या है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की, तो डिफरेंट लेयर्स आपने सीक्वेंस में मेंशन कर देनी है, ठीक है। उसको डायग्राम के फॉर्म में बता सकते हो या फिर पॉइंट्स के फॉर्म में बता सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर क्या है, लेयर ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, विच कंटेन सर्फेक्टेंट दैट लाइंस द एल्वियोलाई एंड रिड्यूसेस सरफेस टेंशन, ठीक है। सर्फेक्टेंट की बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन ऑलरेडी की हुई है, इसकी कंपोजिशन की, उसकी इंपॉर्टेंस की और उसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होती है उसकी और उसकी कंपोजिशन की, ठीक है। ये सारी हवालों से बहुत इंपॉर्टेंट है सर्फेक्टेंट। सो फर्स्टली आप याद रखो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सर्फेक्टेंट। दिस इज द फर्स्ट लेयर, द लेयर ऑफ फ्लूइड दैट कंटेन सर्फेक्टेंट। सेकेंड लेयर पे आते हैं, दैट इज एल्व्यूलर एपिथेलियम, दैट इज कंपोज्ड ऑफ थिन एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। इस डायग्राम में तो आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, हिस्टोलॉजिकली देख सकते हो गूगल पे निकाल के डायग्राम्स को के लेयर्स की जो है वो हिस्टोलॉजी क्या है, कहाँ एपिथेलियल है, कहाँ पे एंडोथेलियम है, ठीक है, वो देख सकते हैं। तो सेकंड लेयर कौन सी है, एल्व्यूलर एपिथेलियम होगी, विच इज कंपोज्ड ऑफ थिन एपिथेलियल सेल्स। देन ऑब्वियसली सेल्स के बाद क्या आता है, मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो क्या होगी थर्ड पे, एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन। सीक्वेंस में अगर चलो इस डायग्राम में, तो पहली क्या होगी, फ्लूइड एंड सर्फेक्टेंट लेयर, सेकंड एल्व्यूलर एपिथेलियम, थर्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। देन फोर्थ इज थिन, जो अक्सर भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो जंप कर जाते हैं कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, उससे पहले एक स्पेस आती है, ठीक है, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस, अ थिन इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन alveolar epithelium and the capillary membrane, right? Now fifth layer, capillary basement membrane. डायग्राम में अप्रिशिएट भी कर सकते हो उसको, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस के बाद क्या ये कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड द लास्ट इज कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है, एंडोथेलियल सेल से लाइन की गई है। तो ये तो इस डायग्राम में आपने लेयर बाय लेयर जो है वो सीक्वेंस में देख लिया कि 6 लेयर्स हैं टोटली इन्वॉल्व इसके अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। और दूसरा ये कि आप इसमें एरोस देख सकते हैं, ग्रीन एरोस, डिफ्यूजन ऑक्सीजन की हो रही है टुवर्ड्स राइट साइड फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन हो रही है फ्रॉम ब्लड टू बैक टू द एल्वियोलाई, ठीक है, बैक टू द एल्वियोलाई, ताकि वो एक्सपायर हो सके। होप आपको ये डायग्राम अंडरस्टैंड होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। Now these are the 6 layers of the respiratory membrane already discussed in previous diagram. Moving on to the next slide. So summarizing the factors that affect gas diffusion, आप लोग इन सारे चीज़ों को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूलेज में, और मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, रिवाइज कर लें। थिकनेस है, सरफेस एरिया है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट है और पार्शियल प्रेशर है। रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द मेम्ब्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स थिकनेस, ठीक है। जितनी ज़्यादा थिक होगी मेम्ब्रेन की, ऑब्वियसली उतनी डिफ्यूजन कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि थिकनेस किससे बढ़ सकती है, ठीक है। थिकनेस बढ़ने के बहुत से रीजन हो सकते हैं कि उस स्पेस में जो हमारी इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाए, एडिमा की, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाए, जिसको हम एडिमा कहते हैं, ठीक है। अब ये फ्लूइड कहाँ से आ गया इतना ज़्यादा इकट्ठा, जब भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, पल्मोनरी लाइनिंग पे, वॉल पे, ठीक है, जब भी कोई, फॉर एग्जांपल निमोनिया का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है कैपिलरीज का, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ाते हैं कैपिलरीज का, फ्लूइड वहां से निकल के, कैपिलरी से निकल के स्पेस में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम एडिमा कह देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली थिकनेस इससे भी बढ़ सकता है, ठीक है। जब स्पेस में जाहिर है इतना फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो ओवरऑल रेस्पिरेटरी यूनिट की थिकनेस बढ़ जाएगी और उतनी ही डिफ्यूजन मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं पल्मोनरी डिजीजेस की, जैसे फाइब्रोसिस है लंग्स की, ठीक है, ये भी क्या करती है, इंक्रीज कर देती है थिकनेस की। और इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट कॉजेज हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जिनमें थिकनेस बढ़ जाएगी, डिफ्यूजन कम हो जाएगी। अब सरफेस एरिया की बात करते हैं। पहले हमने बात की थिकनेस की कि वो बढ़ने से क्या हुआ, डिफ्यूजन कम हो गई। अब सरफेस एरिया के कम होने से भी क्या होगा कि डिफ्यूजन कम हो जाएगी, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी डिफ्यूजन अच्छी होती है, जितना कम हो जाता है डिफरेंट रीजंस की वजह से उतनी डिफ्यूजन कम हो जाएगी। अब एक एग्जांपल है कि एंटायर लंग ही रिमूव करना पड़ गया, ठीक है, उससे क्या होगा कि टोटल सरफेस एरिया 1/2 नॉर्मल हो गया, ठीक है, सरफेस एरिया कम हो गया, डिफ्यूजन कम हो गई।
इसी तरह एम्फाइसीमा की एग्जांपल है। एम्फाइसीमा इटसेल्फ एक डिजीज का जो है डिटेल डिस्कशन हमारी लास्ट में होगी जब हम डिजीजेस पढ़ेंगे लंग्स की, ठीक है। फॉर नाउ आप लोग ये याद रख लो कि एम्फाइसीमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें एल्वियोलर वॉल्स की टोटली डिसोल्यूशन हो जाती है, लार्ज चैम्बर्स हो जाते हैं, बड़े बड़े चैम्बर्स हो जाते हैं, और क्या होते हैं, बहुत ही थिन हो जाते हैं। एल्वियोलर की जो वॉल्स हैं बहुत थिन हो जाती हैं और वो साइज में बहुत बढ़ जाते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है कि वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्स की क्या हो रही है, डाइसोल्यूशन हो रही है। उसके बाद डिफ्यूजन कोफिशिएंट और मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं। ये भी ऑलरेडी हमारी स्लाइड्स में डिस्कस हो चुका है प्रीवियसली, ठीक है। और जो लास्ट में लिखा हुआ है कि 20 टाइम्स रैपिडिटी है, ये भी हम बात कर चुके हैं शुरू की स्लाइड्स के अंदर। ये रिपीटिशन है, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। देन प्रेशर डिफरेंस का फैक्टर है, ठीक है, दोनों एंड्स पे। डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं कि एवरेज यंग मैन में डिफ्यूजन कैपेसिटी कितनी है, ml पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी के लिहाज से देखें तो 21 है, ठीक है। और एक्सरसाइज में ये बढ़ के 65 तक हो जाती है। डिफ्यूजन कैपेसिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सो रैपिडली that the average pressure in pulmonary blood is not far different from partial pressure of carbon dioxide in alveoli, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा ये लेक्चर। इस लेक्चर के बाद आप लोग बुक्स से भी कंसल्ट करें और इस टॉपिक को साथ ही कवर कर लें, इस चैप्टर को, ठीक है। और कोशिश करें कि जब तक आप लोग घर में हैं इस रूटीन को रखें कि डेली डेली जो है एडवांस में भी पढ़ते जाएं। जो लेक्चर्स आपके आगे अभी करवाने वाले रहते हैं उनको भी खुद से भी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट बुक्स से उनको पढ़ें, उनके नोट्स बनाएं, ठीक है। क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है, उसमें भी स्केड्यूल टफ हो जाता है घर की रूटीन का। तो कोशिश करें कि आप लोग मैक्सिमम जो कवर करा दिया सिलेबस उसको तो याद रिवाइज करें लाजमी, ठीक है। नेक्स्ट भी पढ़ें साथ साथ जो पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू ऑल, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। थैंक यू।